गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है, आज का लेक्चर है ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स एज प्रपोज्ड बाय रोथमलर एंड प्रोस्काउर इन द ईयर 1951 एंड 57। हम रोथमलर एंड प्रोस्काउर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने टेक्स्ट बुक्स है बच्चों, उन सब टेक्स्ट बुक्स में इन्हीं का क्लासिफिकेशन को फॉलो किया है। ठीक है, मोरोवर आपके जो सिलेबस है उसमें कुछ खास मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, सिंपल ऐसा लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स अप टू फैमिली, तो फैमिली लेवल तक हम इसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी वजह से हम इस पुराने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं। गिवन इन द ईयर 1951 एंड 57 क्या है ना, ये 51 और 57 क्या है, ये आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं क्लियर कराऊंगा। हालांकि जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उनसे ये काफी डिफर करता है, स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड का system of classification है regarding this bryophytic group of plants that differs to a big extent। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों ने। हम लोग रोथमिलर एंड प्रोस्कोर के सिस्टम को लेके चलेंगे। इन दोनों ने थ्री क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था बच्चों। ठीक है, इन द ईयर 1951 फर्स्टली रोथमेलर gave a three class system of classification for division bryophyta, for division bryophyta, and bryophytes were assigned a rank of division by Schimper in 1879 and Rothmeller followed this। रोथमेलर ने भी शिम्पर को फॉलो करते हुए जो ब्रायोफिटिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं उनको एक रैंक असाइन किया डिवीजन के लेवल पर। ठीक है, और क्या नाम दिया, डिवीजन ब्रायोफाइटा। और डिवीजन ब्रायोफाइटा को रोथमेलर ने 1951 में तीन क्लासेस में डिवाइड किया। मींस he gave a three class system of classification for division bryophyta, which includes all bryophytic plants. And what are those classes? Number one, class Hepaticopsida, the members of which are commonly known as liverworts। Then second class Anthoceropsida, यहाँ ध्यान देना बच्चों, Anthoceropsida, the members of which are commonly called as hornworts। And then third class in the form of class Bryopsida, the members of which are commonly known as mosses। And amongst the three classes, the members of class Bryopsida are considered more advanced as compared to other two classes called Hepaticopsida and Anthoceratopsida। And this was the system proposed by Rothmeller in the year 1951, and in the year 1957 Proskauer also proposed a system of classification. He also proposed the three class system of classification, almost same as that given by Rothmeller in the year 1951. He slightly changed it by changing the name of second class, that is class Anthoceropsida to सॉरी यहां बीच में ओ है, अच्छा बच्चों, Anthoceratopsida। So the system which we are following today becomes a combined system proposed by Rothmeller in the year 1951 and Proskauer in the year 1957, and both of them followed Schimper on the point that they also assigned this bryophytic group of plants a rank of division called Bryophyta. So the system of classification now becomes a okay. Proskauer in the year 1957
changed the name of class Anthoceropsida to Anthoceratopsida. He just changed this portion. ठीक है, Anthoceropsida to Anthoceratopsida. So the system of classification becomes a division. Bryophyta has been divided into three classes, that is class Hepaticopsida, class Anthoceratopsida and class Bryopsida. अब जो फर्दर आगे हम क्लासिफिकेशन करेंगे बच्चों, एक एक क्लास को हम पकड़ के क्लासिफाई करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम हेपेटिकोप्सिडा को डील करेंगे, उसके बाद क्लास एंथोसीरोटॉप्सिडा को डील करेंगे और लास्ट में हम क्लास ब्रायोप्सिडा को डील करेंगे। जैसे कि हमने पिछले ग्रुप्स में भी किया था कि कुछ कैरेक्टर्स लेना जरूरी है बच्चों, कुछ कैरेक्टर्स जिनको हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोलेंगे या एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स होंगे या हम बोल सकते हैं टेक्सोनॉमिकल एविडेंसेस, या हम बोल सकते हैं कि क्राइटेरिया इन द फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच रोथमेलर एंड प्रोस्क्योर divided the bryophytic group of plants into three classes. तो कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन हम लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। 5-6-7 कैरेक्टर्स हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले हम क्लास हेपेटिकोप्सिडा के कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे या इसके टेक्सोनॉमिकल एविडेंसेस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक उसी तरह से फिर हम सेकंड क्लास को पकड़ेंगे और फिर अंत में हम थर्ड क्लास को पकड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लास हेपेटिकोप्सिडा, इसके जनरल कैरेक्टर्स या इसको टेक्सोनॉमिकल एविडेंस भी बोलते हैं बच्चों, या हम क्राइटेरिया भी बोलते हैं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट वर द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच Rothmiller and Proskauer put some members of bryophytes into class Hepaticopsida, ठीक है। या दूसरे शब्दों में हम सिंपली बोल सकते हैं कि डिस्कस द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास Hepaticopsida on the basis of which some members were put into that class. यहां बोल सकते हैं कि डिस्कस टेक्सोनॉमिकल क्राइटेरिया, टेक्सोनॉमिकल एविडेंसेस, ठीक है। अब इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, है ना बच्चों, ये मैं पिछले लेक्चर्स में अच्छे से मैंने बता दिया है, ठीक है। तो जो कैरेक्टर्स है, कुछ कैरेक्टर्स हम साथ साथ में तीनों क्लासेस का इन्हीं स्लाइड से लेते हुए चलेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे फर्स्ट है द मेंबर्स ऑफ क्लास हेपेटिकोप्सिडा आर कॉमनली कॉल्ड लिवरवर्ट्स। उसी तरह से जब हम सेकंड क्लास एंथोसीरोटॉप्सिडा को डिस्कस करेंगे तो हमारा पहला पॉइंट आएगा द मेंबर्स ऑफ क्लास एंथोसीरोटॉप्सिडा आर कॉमनली कॉल्ड हॉर्नवर्ट्स। सिमिलरली जब हम थर्ड क्लास को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम करेंगे कि द मेंबर्स ऑफ क्लास ब्रायोप्सिडा आर कॉमनली कॉल्ड मोसिस, ठीक है। और सेकंड पॉइंट आया रिगार्डिंग द थैलस रेंज। इन द मेंबर्स ऑफ क्लास हेपेटिकोप्सिडा द गेमेटोफिटिक थैलस कैन आइदर बी हेपेटिक टाइप और थैलोइड टाइप और कैन बी लीफी एक्सिस और फाइलोइड टाइप्स, ठीक है। हेपेटिक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को कई एग्जांपल दे दिया था, है ना, मार्केंशिया, रिक्सिया, पीलिया, एंथोसिरोस, डेंड्रोसिरोस वगैरह, ठीक है। और जो हेपेटिकोप्सिडा के मेंबर्स हैं जैसे पीलिया है, रिक्सिया है, हमारे पास मार्केंशिया है, ठीक है। तो इनमें या तो हेपेटिक बॉडी रहता है या लीफी एक्सिस रहता है, गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, लेकिन वो लीफी एक्सिस इरेक्ट नहीं होता है बच्चों। जो इरेक्ट लीफी एक्सिस है वो सिर्फ क्लास ब्रायोप्सिडा में मिलते हैं, ठीक है, क्लास हेपेटिकोप्सिडा में नहीं मिलते हैं, बल्कि जो लीफी एक्सिस है वो प्रोस्ट्रेटली ग्रोइंग लीफी एक्सिस होते हैं बच्चों, जिनको हम फाइलोइड फॉर्म्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको पोरेला का, ठीक है। यहां डिस्कस करें ना करें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जांपल आपको याद रहना चाहिए, एक पोरेला। और इन दोनों केसेस में जहां पर भी गेमेटोफिटिक थैलस जो है और गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो है हेपेटिक रहता है, थैलोइड फॉर्म रहता है, या प्रोस्टेटली ग्रोइंग लीफी एक्सिस के फॉर्म में रहता है, या फाइलोइड फॉर्म में रहता है, इसमें क्लियर कट
डोर्सिवेंट्रल सिमेट्री रहता है बच्चों, मींस such gametophytic thalli they have distinct dorsal surface and a distinct ventral surface. ठीक है, अब एक और कैरेक्टर आएगा कि जो लीफी एक्सिस हैं जैसे पोरेला है, उनमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसमें मिड रिब प्रेजेंट नहीं रहता है बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, देयर इज नो मिड रिब इन लीफी एक्सिस इन द members of class Hepaticopsida. There can be many other members in addition to Porella. ठीक है, but we need not to remember much names, multiple names. ठीक है, one or few are sufficient for us. The third character again is prostately growing leafy axis or phyloid forms do not have midrib. midrib इनमें प्रेजेंट नहीं रहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बच्चों, ये भी याद रखना है, midrib is not there. One more character regarding rhizoids. Rhizoids are unicellular in class Hepaticopsida, class Anthocerotopsida, whereas rhizoids are multicellular in class Bryopsida. And even in some higher members of class Bryopsida, these multicellular and branched rhizoids, they make a cord-like structure called rhizoidal strands. I had given you two examples, one in the form of polytrichum and second in the form of pogonatum. हाँ, यहां पर फिर थोड़ा सा समझाने का है क्योंकि ये शब्द आप लोगों के लिए कुछ नया है बच्चों। आर्चिस्पोरियल टिश्यू, व्हाट इज आर्चिस्पोरियल टिश्यू पहले बताता हूं। व्हेन द embryonic development starts or when the zygote while retaining inside the venter of archegonium starts its exoscopic embryonic development, up to a certain stage the cells are in undifferentiated form. Undifferentiated form, after a certain stage the portion of that multicellular undifferentiated mass, embryonic mass, which has to form capsular region, in that region a periclinal division occurs, as a result of which two clear zones are differentiated. The outer zone that will make the capsule wall portion, whereas the inner zone will produce the spores in future. So those first differentiated fertile cells are called archisporial cells or archisporial tissue और archisporium. आगे मैंने कुछ इमेजेस बनाया हुआ बच्चों, वहां से मैं आपको बहुत प्यार से आराम से समझाऊंगा। ठीक है, तो जो हेपेटिकॉप्सिडा के मेंबर्स हैं उनमें आर्चिस्पोरियल डेवलपमेंट होता है फ्रॉम एंडोथीशियम, whereas in the members of class Anthocerotopsida and Bryopsida, archisporial tissue develops from एम्फीथीशियम। ये मैं आगे समझा दूंगा बच्चों। ठीक है, आज का लेक्चर में यही पॉइंट थोड़ा ज्यादा समझने को है क्योंकि आप लोगों ने प्लस 1 2 में शायद इन वर्ड्स को स्टडी नहीं किया होगा, है ना। एम्फीथीशियम, ये दोनों क्या है और कैसे ये डिफरेंशिएट होते हैं ये मैं अच्छे से आगे के स्लाइड्स में बता दूंगा बच्चों। ठीक है, बस हमें ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि हेपेटिकॉप्सिडा के मेंबर्स में जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ फर्टाइल सेल्स इन द कैप्सुलर रीजन ऑफ डेवलपिंग स्पोरोगोनियम जो होगा वो एंडोथीशियम से डेवलप होता है, whereas in case of class Anthocerotopsida and class Bryopsida, this archisporial tissue develops from एम्फीथीशियम। और अगला एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्पोरोगोनियम फाउंड in the members of class Hepaticopsida
are almost completely dependent on gametophytic thallus because the sporophytic structure has very little, insufficient quantity, or no chlorophyll containing cells, or no chloroplast containing cells. That means the majority of the members of class Hepaticopsida are incapable to synthesize their carbon food or organic food, and thus most of the members of class Hepaticopsida, they are 100% dependent on gametophytic for drying its organic nutrients. For drying inorganic nutrients, all the bryophytic members belonging to these three classes are 100% dependent on gametophyte. ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन लेने के लिए सारे के सारे ब्रायोफाइट्स 100% डिपेंडेंट है, जबकि कार्बन न्यूट्रिशन लेने के लिए हेपेटिकोप्सिडा के मेंबर्स एट लीस्ट अप्रोक्सीमेटली 100%, ठीक है, डिपेंडेंट है बच्चों। ठीक है, अब ये आर्चिस्पोरियम क्या है, एंडोथीशियम क्या है, ये मैं आगे के स्लाइड में बताने का कोशिश करूंगा। ये मैंने एक इमेज लिया है, ये आपका डेवलपमेंटल स्टेजेस दिखा रहा है स्पोरोगोनियम फॉर्मेशन का इन केस ऑफ मार्केंशिया। यहां थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, पहला जीनस मार्केंशिया। ठीक है, अब मैं पहले जो डिफरेंट कलर्स हैं ये मैं क्लियर करवा देता हूं। दिस पोर्शन इज गेमिटोफिटिक टिश्यू, ठीक है, गेमिटोफिटिक थैलस का टिश्यू है जहां से ये भोजन ड्रा करेगा, प्लस इसके ऊपर एंकर्ड रहेगा। जो गेमिटोफिटिक टिश्यू है यहां पर इसको भोजन भी प्रोवाइड करा रहा है, प्लस इसको हम बोल सकते हैं कि सबस्ट्रेटम भी प्रोवाइड करा रहा है। किसको? इस डेवलपिंग स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को। तो यहां पर ये मार्केंशिया है। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में अलग अलग प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स बताया था बच्चों, है ना, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ब्रायोफिटिक मेंबर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ यंग और डेवलपिंग स्पोरोगोनियम up to the stage when it produces spores। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन से पहले इसको प्रोटेक्शन का जरूरत रहता है हर स्पोरोगोनियम को ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, और स्पोर फॉर्मेशन के बाद जरूरत नहीं रहता है। स्पोर फॉर्मेशन के बाद ये इन प्रोटेक्टिव लेयर से बाहर आ जाता है और डेसिकेट होता है और स्पोर्स लिबरेट करता है। ठीक है, और अब जो ये हरा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ गेमिटोफिटिक थैलस। ये दिख रहा है आप लोगों को, इसका मतलब ये क्या है? दिस इज पेरीगाइनियम। पेरीगाइनियम, पेरीगाइनियम है, इसको पेरिकेटियम क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि पेरीगाइनियम आपका सिंगल स्पोरोगोनियम को प्रोटेक्ट करता है, वेयर एज पेरिकेटियम इट प्रोटेक्ट्स अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग स्पोरोगोनिया। ठीक है, तो पेरीगाइनियम हो गया बच्चों। अब दूसरा मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट, कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा और मैंने क्या बताया था? कैलिप्ट्रा इज नॉट पार्ट ऑफ गेमिटोफिटिक टिश्यू बट इट इज द पार्ट ऑफ venter wall। So venter wall extends in such a way, this is it, venter wall extends in such a way that it makes a protective structure around this developing sporogonium, young sporogonium। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर को आप छोड़ देते हैं। अब आते हैं सेंट्रल पोर्शन में, यहां पर स्पोरोगोनियम डेवलप हो रहा है बच्चों, लेकिन एक अनडिफरेंशिएटेड मास है, अनडिफरेंशिएटेड मास है। हालांकि फ्यूचर के जो 3 पार्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल, वो डिमार्केट होना शुरू हो चुका है। जैसे ये पोर्शन होगा, दिस विल डेवलप इनटू फुट, दिस पोर्शन विल डेवलप इनटू अ मैसिव, मैंने बताया था मैसिव सीटा, नॉट सो लॉन्ग बट मैसिव सीटा, एंड दिस पोर्शन विल डेवलप इनटू अ कैप्सुलर रीजन। ठीक है, एंड दिस पोर्शन called capsular region is responsible for production of spores। एक पॉइंट में छूट गया था बच्चों, पिछले स्लाइड में जाना पड़ेगा इस पॉइंट के लिए। स्पोरोगोनियम
इज विद लिटिल और नो क्लोरोफाइलोस टिश्यू, और हेपेटिकोप्सिडा के मेंबर्स में क्लोरोफाइलस टिश्यू ना के बराबर है, इनसफिशिएंट है, जबकि बहुत सारे मेंबर्स क्लास एंथोसीरोटोप्सिडा और बहुत सारे मेंबर्स क्लास ब्रायोप्सिडा के हैं जहां पर क्लोरोफाइलोस टिश्यू होता है बच्चों स्पोरोगोनियम में। लेकिन मैं यहां बता देना चाहता हूं कि क्लोरोफाइलोस टिश्यू होगा ये फुट और सीटा में नहीं होता है, ये सिर्फ कैप्सूल रीजन में होता है बच्चों। ठीक है, तो जो क्लोरोफाइलस होना या ना होना का मतलब है कि कैप्सूल ग्रीन है या नहीं है। इफ इट इज हैविंग क्लोरोफिल्स, कैप्सूल इज ग्रीन and capable to synthesize organic food. If it has no chlorophylls, like the members of a Hepaticopsida, it is non-green. That means it is 100% dependent on gametophyte for drying organic food. ठीक है बच्चों, अब ये आ गया। अब होता क्या है, आफ्टर अटेनिंग अ सर्टन स्टेज जो कैप्सुलर रीजन होगा बच्चों, कैप्सुलर रीजन में एक पेरिक्लाइनल डिवीजन आता है, एक पेरिक्लाइनल डिवीजन आता है, होता है, और दो क्लियर कट जोन्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं। जो ये आउटर जोन रहेगा इसको हम बोलते हैं एम्फी, ये पूरा नहीं लिखूंगा, एम्फीथीशियम। ठीक है, और जो इनर जोन रहेगा, ठीक है, बनेगा, उसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। और जो क्लास हेपेटिकोप्सिडा के मेंबर्स में कैप्सूल के रीजन का जो वाल होगा, जो कि ज्यादातर मेंबर्स में 1 सेल थिक होता है बच्चों, इट इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम एम्फीथीशियम, वेयर एज द इनर रीजन विच बिकम्स एंडोथीशियम, it divides and redivides and it gives rise to the first generation of fertile cells in the form of archisporium, आर्चिस्पोरियम और आर्चिस्पोरियल मास। अगले स्लाइड से मैं इसको समझाने का कोशिश करूंगा। ये है बच्चों, ठीक है, देयर इज नो पेरिक्लाइनल डिवीजन इन फुट रीजन, देयर इज नो पेरिक्लाइनल डिवीजन इन सीटा रीजन, वेयर एज one periclinal division occurs in a capsular region, so that two zones are established. Outer zone called epithecium, this will make the wall of capsule, whereas endothecium, it will give rise to archisporial tissue. अब बात करते हैं ये पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है बच्चों। पेरिक्लाइनल डिवीजन वो डिवीजन है which occurs in the whole body, not in one or few cells, but the whole body, and the plane of division is nearly or almost parallel to the periphery of that body which is subject to division। जो एक बॉडी, एक मल्टीसेलुलर मास डिवाइड करता है, किस लिए, दो जोन्स एस्टेब्लिश करने के लिए, आउटर जोन एंड इनर जोन। एक डिवीजन होता है वो पूरे बॉडी में होता है, और उस डिवीजन का प्लेन जो होता है वो ऑलमोस्ट पैरेलल होता है बच्चों, पेरिफेरी, उस पर्टिकुलर बॉडी के, उस मल्टीसेलुलर मास के पेरिफेरी के लगभग पैरेलल मूव करता है वो प्लेन ऑफ डिवीजन। इस तरह के डिवीजन को हम बोलेंगे पेरिक्लाइनल डिवीजन। ब्रायोफाइट्स में आप लोग अक्सर इस शब्द को पाओगे। पेरिक्लाइनल डिवीजन का सीधा मतलब है हमने एक अनडिफरेंशिएटेड मास को आउटर जोन और इनर जोन में डिफरेंशिएट करने के लिए हमको पेरिक्लाइनल डिवीजन करना पड़ता है। हमको नहीं करना पड़ता, ये करते हैं ब्रायोफाइट्स करते हैं। अगेन नेचर इनको रेगुलेट कर रहा है ना, कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। ठीक है बच्चों, नाउ वंस दिस इज एस्टैब्लिश्ड, अच्छा या एक और बात बता देता हूं बच्चों, ठीक है, द सेंट्रल पोर्शन एंडोथीशियल सेल्स दे डिवाइड एंड रीडिवाइड। इससे क्या होगा, जब डिवीजन होगा तो इनका वॉल्यूम बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। ठीक है,
तो उस सूरत में क्या होता है, जो आउटर सेल्स हैं जिन्होंने जैकेट बनाना है, इनको भी डिवाइड करना पड़ता है, और वो जो डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन, एंटीक्लाइनल डिवीजन, एंड दैट डिवीजन again occurs in each cell, and in this case the plane of division is perpendicular to the periphery of that mass or that multicellular body, and anticlinal division occurs in such members, say bryophytes, in order to increase the number of cells in that layer or in those layers if this structure becomes multi-layered. और मल्टी-लेयर्ड करने के लिए, जैसे कि हमारे एंथोसिरोटॉप्सिडा के मेंबर्स हैं, वहां पर जो वाल है कैप्सुलर रीजन का मल्टी-लेयर्ड होता है। ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स हैं जैसे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम है, उनमें भी कैप्सुलर रीजन का वाल जो है मल्टी-लेयर्ड होता है। उस सूरत में क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो ये वन सेल थिक स्ट्रक्चर है जिसने वाल बनाना है, इसमें अगेन पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है बच्चों। अब इसके बाद मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा। मींस पेरिक्लाइनल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेयर्स, whereas anticlinal division is responsible for increasing the number of cells in each layer so that it can cope with the continuously increasing inner mass. सेंटर के सेल्स डिवाइड रीडिवाइड करते रहेंगे, जब ये डिवाइड करेंगे तो इनका मास भी बढ़ेगा, तो उस मास को कोप करने के लिए, मान लो ये मास बढ़ रहा है, बाहर कोई एंटीक्लाइनल डिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होगा, वो ये फट जाएगा, ठीक है, फट जाएगा का मतलब इसका काम खत्म हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होने देता है, ठीक है, ये पेरिश हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होने देगा, इसीलिए एंटीक्लाइनल डिवीजन करके ये नंबर ऑफ सेल्स इन जैकेट लेयर भी बढ़ाता है। तो ये हो गया बच्चों। और लास्ट में जो सेकंड लास्ट जो जनरेशन है, मैंने कहा था आपको इनर मास का, दिस इज कॉल्ड स्पोरोजीनस मास, स्पोरोजीनस मास, एंड दिस स्पोरोजीनस मास इन सम मेंबर्स differentiates into two types of cells. For example, in Markensia, one type of cells are called spore mother cells, and second type of cells are called elater mother cells. However, in some members of bryophytes, for example in Rixia, no elaters are formed, but the sporogenous mass it completely makes spore mother cells only. ठीक है, तो ये हुआ। तो जो मार्केशिया में कैप्सूल वाल है ये यूनिस्टेटोस ही रहता है, मार्केशिया के अलावा हेपेटिक ऑप्सिडा के मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स में, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स में। और लास्ट में फिर हमारे पास ये इमेज, फिर वही बात बताता हूं, मैंने थोड़ा रंग बिरंगा इसलिए किया, हमारे सिलेबस में है, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए डिफरेंट रीजन्स, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा रंग बिरंगा किया है। एंड लास्टली दिस स्पोरोजिनस मास डिफरेंशिएट्स इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज दिस टाइप, ये असल में ये स्पोर टेट्राड्स है बच्चों, ठीक है, और सेकंड टाइप इलेटर मदर सेल्स विच फाइनली डिफरेंशिएट इनटू इलेटर्स, ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, ठीक है बच्चों, इलेटर्स, एंड दिस बिकम स्पोर्स। सो दिस इज इट बच्चों, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताना था एम्पिथीशियम और एंडोथीशियम का मतलब समझाने के लिए, ठीक है। और मैंने क्या कहा है बच्चों, हेपेटिक कोप्सिडा के मेंबर्स में जो जैकेट होगा वो एम्पिथीशियल इन ओरिजिन होगा, और जो सेंट्रल मास होगा, ठीक है, चाहे वो आर्चिस्पोरियम हुआ चाहे फिर वो बाद में स्पोरोजिनस मास बन जाता है, ठीक है, वो एंडोथीशियम से ओरिजिनेट होगा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन। ओहो, टाइम समाप्त हो रहा है, ठीक है, टाइम समाप्त हो रहा है, अगले अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्लास हेपेटिक ऑप्सिडा को इस ब्लैंक पेज के ऊपर आराम से एक बार डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैंने आगे स्लाइड लिख के रखा हुआ, वो एक एक करके मैं रीड करता रहूंगा,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर हम क्लास हेपेटिक ऑप्सिटा के फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों।